Okay, so today we will study about the um, in the last lecture you study about the short term and long term control of blood pressure, and today we will study about the one last topic about the regulation of blood pressure, which is the pressure in the pulmonary circulation. So what is the pulmonary circulation? The pulmonary circulation is the circulation in the lungs. The term pulmonary means the lungs, related to lungs. So the pressure, now we will discuss the pressure in the pulmonary circulation. um, we know that blood from the heart is carried by the pulmonary arteries to the trunk, and it is carried from the lungs to the left heart through the pulmonary veins. So the pulmonary capillary pressure is the blood pressure inside the pulmonary capillaries. It is 25 millimeter of mercury, and the systolic blood pressure in the pulmonary artery is 25, and diastolic pressure is the 8 millimeter of mercury. So you can see that the pressure in the pulmonary arteries is during systole as well as diastole is quite low as compared to that of in the systemic circulation, the aorta and the larger arteries. The reason is obvious, because the blood the left heart has to carry blood to many distal parts of the body, many peripheral parts of the body, but as the lungs are close to the heart, so it doesn't require much pressure to pump the blood. So this is important that the pulmonary capillary pressure is 25 millimeter of mercury. If it is exceeds then what will be increased, the hydrostatic pressure. The hydrostatic pressure in the pulmonary capillary is increased. If it is increased, it will cause the exudation of the fluid from the capillaries into the pulmonary spaces, and it will lead to the pulmonary edema. Okay, so the autoregulation in the pulmonary circulation makes sure that the blood flow to the vast network capillary is directed through well oxygenated air sacs. For example, if there is hypoxia in certain parts of the lungs, the blood from that area it will be diverted towards the well ventilated areas by vasoconstriction. So there will be vasoconstriction of the arteries which are which are supplying the those parts of the lungs where ventilation is impaired, and the blood will be diverted towards the well ventilated parts of the lungs. So this is the autoregulation. This was all about the regulation of blood pressure. Now we will discuss about the another topic. Okay, our next topic is the pulse, जिसको उर्दू में हम नब्ज़ भी कहते हैं, अक्सर आपने सुना होगा. सो द पल्स जो है, आप आर्टीरियल सिस्टम में जो हमारा एओर्टा से शुरू होता है एंड टूवर्ड्स द पेरिफेरल आर्टरीज, वहाँ पे किसी भी पॉइंट पे आप पल्स फील कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ अ ट्रांसमिशन ऑफ द डिस्टेंसिबिलिटी, ठीक है, अलोंग द आर्टीरियल वॉल. एओर्टा से एक वेव शुरू होगी, एओर्टा के फर्स्ट पार्ट से, और वो एक वेव की सूरत में, जैसे कि आप एक लंबी सी चादर अगर लें, उसको आप एक सिरे से डिस्टेंड करें, ऊपर उछालें और उसको फिर दोबारा नीचे ले आएँ, तो एक जो वेव जनरेट होगी वो सारी जो है वो उस पर स्प्रेड कर जाएगी, ट्रैवल कर जाएगी, ठीक है, और एंड पर जाकर डाई ऑफ हो जाएगी. सो इसी तरह आप पल्स को भी समझें कि वो ये नहीं है कि वो कोई ब्लड आया है आर्टरीज़ की आर्टरीज़ में, तो ब्लड ने आके उसे खोला है, उसको फैलाया है. ब्लड के आने से पहले ही जो है ना वो डिस्टेंड हो जाती है. हाँ, एओर्टा के जो फर्स्ट पार्ट, जो असेंडिंग एओर्टा है, वहाँ पर ब्लड ज़रूर पहले आता है और वो उसको डिस्टेंड
सो तो जो पल्स है वो वेव है ऑफ द डिस्टेंसिबिलिटी विच इज़ फेल्ट अलोंग द आर्टीरियल वॉल्स, और ये होती है जी जब ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में आता है, एओर्टा को डिस्टेंड करता है, और जो है एक वेव ऑफ डिस्टेंसिबिलिटी वो आपको फील होती है ऑल द वे from the aorta towards the peripheral arteries. बट जो मेट आर्टीरियोल्स, कैपिलरीज, जो छोटी वेसल्स हैं, यहाँ पे आते आते ये डाई ऑफ हो जाती है, यहाँ पे फेड जाते हैं। तो कैपिलरीज में जो है ना वो आपको बहुत ही कम जो है ना वेव का एम्पलीट्यूड फील होगा। सो ईच कंट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल में इजेक्शन फ्रैक्शन कितना ही होती है, एज वी हैव स्टडीड ऑलरेडी, ऑलमोस्ट 70 मिलीमीटर ऑफ ब्लड, ml ऑफ ब्लड, 60 to 80 ml ऑफ द ब्लड जो है वो इजेक्ट होता है फ्रॉम द लेफ्ट हार्ट, लेफ्ट वेंट्रिकल टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ एओर्टा, जो कि उसको डिस्टेंड करता है। और ये वेव जो है वी ऑलरेडी डिस्कस जो है आपको फील ट्रैवल होती है ऑल द आर्टरीज, लेकिन हम फील कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं? जाहिर है जो सुपरफिशियल आर्टरीज हैं हम सिर्फ वहीं पे इनको फील कर सकते हैं, सुपरफिशियल आर्टरीज। और जब इनको करने का तरीका ये है कि आपने बोनी कोई लैंडमार्क होना चाहिए, अगेंस्ट द बोन आपने फील करनी होती है, तब आपको ये फील होगी। फॉर एग्जांपल रिस्ट पे भी हम रेडियल बोन, फॉर एग्जांपल रिस्ट के अगेंस्ट प्रेस करते हैं, इसी तरह ब्रेकियल आर्टरी, ये जो हमें पिक्चर में नज़र आ रहा है, ये पॉइंट, कैरोटिड भी, टिबियल आर्टरी, फेमोरल आर्टरी, ये सारे के सारे जो हैं वो बोनी लैंडमार्क्स के अगेंस्ट हम फील करते हैं। पल्स से हम डिफरेंट चीज़ें एस्टिमेट कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ दी हार्ट रेट इन अ नॉर्मल पर्सन, जितना हार्ट रेट होगा यानी कि जितना सिस्टोलिक जितनी दफ़ा सिस्टली होंगी हार्ट में उतनी ही हमें पल्सेस मिलेंगी। तो हमें हार्ट रेट का पता चल जाता है, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि जो ड्यूरिंग सिस्टली इजेक्शन फ्रैक्शन की वजह से फर्स्ट पार्ट ऑफ एओर्टा डिस्टेंड होगा, और जो एक वेव ऑफ ट्रांसमिशन अलोंग द आर्टीरियल वॉल वो जनरेट हो जाएगी। सो जितनी बार हार्ट से इजेक्ट होगा ब्लड, उतना ही दफ़ा आपको पल्स फील होगी, और इट मीन्स के दोनों हार्ट रेट कंट्रैक्शन, रेट ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट एंड द पल्स जो क्या फील करते हो वो दोनों ऑलमोस्ट वो सेम होने चाहिए ना नॉर्मल पर्सन। नंबर 2 रिदम का आपको पता चल जाता है, रेगुलरिटी का, कि दो सारी जो पल्सेस हैं उनके दरमियान में जो इंटरवल है, टाइम इंटरवल, इट शुड बी यूनिफॉर्म, इट शुड बी कांस्टेंट। सो इट मीन्स कि उनका रिदम जो है ना वो सेम होगा। फॉर एग्जांपल दो पल्सेस, अगर किसी दो पल्सेस के दरमियान रेट 1 सेकेंड है और उससे नेक्स्ट दो पल्सेस, ठीक है, पता चल जाता है कि उसकी हार्डनिंग, उसका वॉल्यूम, कि उसकी कितनी ज़्यादा एम्पलीट्यूड है, कितना ज़्यादा, जितना ज़्यादा ब्लड आएगा, जितना ज़्यादा इजेक्शन फ्रैक्शन होगी उतनी ही ज़्यादा रिदम, उतने ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और उतना ही वो आपको उसका एम्पलीट्यूड मिलेगा, वॉल्यूम मिलेगा। इसी तरह टेंशन ऑफ द वॉल है, आपको पता चल जाता है, पता कर सकते हो बाय पैल्पेटिंग कि उसका जो है वो क्या है, वेसल वॉल की कंडीशन क्या है, हार्ड है या सॉफ्ट है। ठीक है, डिफरेंट फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं पल्स रेट को, उनमें से फिजियोलॉजिकल भी हैं, नॉन फिजियोलॉजिकल भी हैं। फिजियोलॉजिकल में फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज आप करोगे तो रेट ज़्यादा हो जाएगा, एंजाइटी में रेट ज़्यादा हो जाएगा, मैन में ज़्यादा हो जाता है, फीमेल में, बट जो है इट डायरेक्टली नॉर्मल पर्सन में डायरेक्टली जो है वो जितनी आपको पल्स फील होगी उतना ही ज़्यादा आपको उतना ही आपका हार्ट रेट होगा। ओके, बट कुछ कंडीशंस हैं जिनको एरिथमियाज कहते हैं, उनमें जो है वो हार्ट आपको जो पल्स रेट है वो डिफरेंट मिलेगा। ठीक है, देन दी हार्ट इटसेल्फ, फॉर एग्जांपल एट्रियोफिब्रिलेशन एक एरिथमिया है, उसमें हार्ट जो है वो जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, बट सारी की सारी जो इम्पल्सेस हैं सारी की सारी वो नहीं ट्रांसमिट हो सकती आर्टीरियल वॉल से, क्योंकि कुछ वीक होती हैं, वो नहीं ट्रांसमिट हो सकती है। आपको कुछ फील होंगी पल्सेस, कुछ जो है वो पल्सेस जो हैं वो इतनी वीक होंगी कि वो आपको नहीं फील होंगी। ठीक है, तो वो पेरिफेरल आर्टरी तक नहीं पहुंच सकेंगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पल्स। सो थैंक यू।